So dear students, I hope you can hear me nicely. So this is my first video towards the revision of your NEET syllabus, okay? And as we can see on 2022, it's like on 17th of July, you'll be having your NEET exam. So NEET exam के हिसाब से ही मैंने जो recent 10 to 15 years के questions आए हैं, previous year questions, I will be discussing the questions along with the formulas and all the basic concepts related to solving those questions. Okay, so basically using these questions I will be giving you the concepts also. Okay, so let's begin then. With this first video I will be uploading for periodic property. Okay, so as we can see that periodic property is the chapter 1 for any inorganic chapters, right? After that I will be covering up the chemical bonding and so on and so forth, but the first chapter is your periodic table and periodic properties. Clear? So you can see here many of the questions on the screen already, which are being asked recently in your medical entrance exam. Okay, so let's begin then. So nomenclature of elements with atomic number greater than 100 का एक टेबल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में. डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है. ये पहला क्वेश्चन तो कोई कॉन्सेप्ट टाइप का है नहीं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट पूछा गया है. हियर दे आर asking you incorrect match. So in this question you can see here the year, this is very recent, NEET 2020. So identify the incorrect match. तो इसमें incorrect क्या होगा? पहला जो है ना वो correct है, दूसरा भी correct है. Okay, अन नील, अन का मतलब वन, नील का मतलब जीरो, अन का मतलब अगेन वन. So पहला जो नाम है अनिल अनियम, this is 101. अनिल ट्रायम is 103. अनिल हेक्सियम is 106. That is again correct. That is सीबोर्गियम. And the last one जो लिखा हुआ है ना, that is wrong. ये wrong है क्योंकि अन 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 का मतलब 111 and 111 का ये जो नाम लिखा हुआ है वो नहीं है, यहाँ पर वो गलत है. इसका मतलब इसमें हम टिक करेंगे डी. इसमें हम टिक करेंगे डी. रोएंटिगेनियम होना चाहिए था, वो गलत है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. ये नाम होना चाहिए. चलो आगे क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल रिलेटेड भी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया है नीट 2017 में. यू कैन सी हियर. सो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. The element Z, okay, the element Z equals to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family? 114. अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ध्यान देना, पीरियोडिक टेबल में अगर हम नोबल गैसेस को लिखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon, and octane. So here you can see, if you want to see the atomic numbers, then we can write this is your 2, this will be your 8, this will be your 18, this will be your 36, this will be your 54, this will be your 86, and this will be your 118. So first will be 2, after that the gap will be 8, then gap will be 8, then gap will be 18, then gap will be 18, then gap will be 32, gap will be 30. That is the trend. Okay, so this is your 118, but they are asking you about 140. So how many left? 4 times you have to come left. Okay, so obviously from here you can see that P ब्लॉक में ये 118 जो है नोबल गैस के हैं. नोबल गैस के एक घर आगे आओगे लेफ्ट में तो वो हेलोजन, और एक ऑक्सीजन फैमिली, और एक नाइट्रोजन फैमिली, और एक तो कार्बन फैमिली. So answer will be your carbon family, that is radon. Rn is radon. 5f14, 6p10, 7s2, 7p2. So your answer will be 2A का आंसर होगा A. Okay, good. So let's begin question number 3 then. क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ. ये क्वेश्चन 2002 का है. An atom has electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 4s2 3d3. ये हो गया स्कैनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम. सो ये वेनेडियम का क्वेश्चन है. सो अगर हम लोग इसके लिए देखें तो यू कैन राइट लाइक दिस. यहाँ पे हम राइट साइड में मैं थोड़ा दिखा देती हूँ. जैसे कि एस ब्लॉक होता है ना, एस ब्लॉक. ओके, एस ब्लॉक का 2 ग्रुप तुम यहाँ लिख सकते हो. फिर मिडिल में डी ब्लॉक का सारा,
फिर राइट हैंड साइड में यू कैन राइट अ पी ब्लॉक्स. ओके, सो यहाँ डी ब्लॉक पूरा मैं नहीं लिखूंगी. पहला तो 1A होता है, दूसरा तो 2A होता है जो कि एल्केलाइन अर्थ मेटल है. सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप इज एल्कली मेटल. एंड आफ्टर द डी ब्लॉक में 10 होता है. ऐसे कॉलम्स बना सकते हो, 10 बना सकते हो. ग्रुप्स मैं नहीं बना रही हूँ, जस्ट मैं यहाँ ध्यान देने के लिए दिखा रही हूँ कि 3A और 3B 4B एंड 5B. ठीक है, ध्यान देना. सो एस ब्लॉक का दो ग्रुप के बाद 3B 4B 5B 6B 7B 8B 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 देन 1B 2B ऐसे करके टोटल यहाँ डी के अंदर 10 होता है. राइट साइड में फिर पी होता है. पी ब्लॉक में 13 टू ग्रुप नंबर 18 तक होता है, जहाँ हम 3A 4A 3A 4A ऐसे करते 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 ग्रुप नंबर 18 यानी कि 0 ग्रुप तक लिखते हैं. बट फिलहाल हमें पूछा गया है 4:3D3 यानी कि यहाँ स्कैंडियम होगा, टाइटेनियम होगा, वेनेडियम. सो ये 5B ग्रुप में रहता है. सो हियर योर आंसर विल बी 5th group. Okay, here your answer will be 5th group. Next, question number 4. The electronic configuration of an element is 1:2:2p6 3:3p3. तो 3:3p3 थर्ड पीरियड एलिमेंट है एंड 3:3p3 यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा P3 है ना, हाफ फिल नाइट्रोजन फैमिली होगा, नाइट्रोजन के नीचे वाला एलिमेंट होगा. व्हाट इज यानी कि फॉस्फोरस. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखा हुआ है, फॉस्फोरस का. What is the atomic number of element which is just below the above element in periodic table? So nitrogen के नीचे phosphorus, phosphorus के नीचे arsenic. That means they are asking you about the information of arsenic. So arsenic का क्या करेंगे, अभी थोड़ा पहले मैंने एक hints दिया था ना, उसी हिसाब से करो कि मैंने बताया था कि कैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग. ये वाला यहाँ पे. सो ये देख सकते हो फर्स्ट पीरियड का ये 2 के बाद है ना, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में गैप 8 है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में गैप 8 है. बट ये जो आर्गन एंड क्रिप्टन है यानी कि थर्ड एंड फोर्थ पीरियड के बीच में गैप कितना है, 18 प्लस करना है. यानी कि तुम्हें फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक के बीच में भी 18 प्लस करना है. क्लियर. सो अगर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाए, क्वेश्चन नंबर 4. So phosphorus का atomic number you can see, phosphorus का atomic number you can see 50, नाइट्रोजन का 7 है ना, उसकी गैप क्या थे 8. बट फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक के बीच में गैप होगी 18. तो 15 plus 18 that is your 33. So C option will be correct. Clear. Next चलो क्वेश्चन नंबर 5. If the atomic number of an element is 33, it will be placed in a periodic table. अभी ऊपर का क्वेश्चन किया ही है हमने. कौन सा ग्रुप होगा, ये हो गया 5 का C, 5th ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 50 P ब्लॉक. ओके, चलो इधर राइट साइड. क्वेश्चन नंबर 6. इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हिच एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली एज अदर्स. तो इसमें अगर हम देखेंगे ये जो 3s2 3p5 है ना, ये बाकी तीनों से मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये आएगा 3s2 3p5 का मतलब हो गया क्लोरीन यानी कि हेलोजन फैमिली, दैट इज ग्रुप नंबर 17. बट बाकी जो है ना सब देखो 5s2 4s2 4s2 ये हो गया तुम्हारा S2 completed ग्रुप्स. ओके, सो यहाँ पे C अलग है. तुम्हें पूछा है कौन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली एज अदर्स, तो कौन बिलोंग नहीं करेगा, C इज डिफरेंट है. नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड्स में अगर देखें, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा गया है, वो भी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 7. सो यहीं पे ध्यान देना, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक्चुअली आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी से हम क्या समझते हैं, ठीक है ना. नॉर्मली एंथैल्पी एंड एनर्जी इज नॉट एग्जैक्टली सेम, बट फिर भी हम लोग कभी कभी सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं. बट याद रखना एंथैल्पी एनर्जी सेम नहीं है. So ionization enthalpy, by enthalpy here for the ionization we can say that it is the minimum amount of energy which is required by any you can say gaseous isolated atom, ताकि वहां से हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन आसानी से outermost shell electron को निकाल सकें. Okay, so to remove the outermost shell electron from any gaseous isolated atom, the minimum amount of energy required is ionization energy, ionization enthalpy. अब ध्यान देना वो वैल्यू जो है यानी कि ये प्रोसेस जो है कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक. एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी. ठीक है. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक पॉइंट तो ये याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, क्या होगा,
कि आयनेशन एनर्जी जो है इंक्रीजेस across a period, यानी कि that means if we move from left to right in a period, the same period, annihilation energy increases. Why? Because left to right atomic radius what? Decreases, and hence ionization enthalpy what? Increases. Because radius छोटा मतलब एटम का साइज छोटा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगी ना, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव पावर है that will be increased. साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, so it will become more difficult to remove that electron particularly, and hence more energy will be required to remove the electron. इसीलिए रेडियस कम तो आयनेशन एनर्जी, ये पोर्शन जो मैंने लिखा, रेडियस कम तो आयनेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस कम तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा, तो उस हिसाब से एक पॉइंट हो गया। दूसरी और एक चीज है कि आयनेशन एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? कि जो हाफ फिल HF, हाफ फिल एंड FF, फुल फिल ऑर्बिटल्स होती है ना, वो ऑलरेडी बहुत ही स्टेबल होता है, और इसीलिए हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल इजीली इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, और इसीलिए हाफ फिल फुल फिल ऑर्बिटल के जो आयनेशन एनर्जी होती है ना, वो हाई होती है देन किससे? इट्स नियरेस्ट नेबरिंग एलिमेंट, नियरेस्ट एलिमेंट, जो उसके नेक्स्ट एलिमेंट होती है, एटलीस्ट उससे इसका आयनेशन एनर्जी बढ़ जाता है। सो वन जंप हम लोग को दिखाई देता है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो देखो ये वाला, तो ये क्वेश्चन आया है, ये भी बहुत रिसेंट है 2019 में। तो हियर यू कैन सी लिथियम बेरिलियम बोरोन में ना क्या है, बेरिलियम इज फुल फिल्ड, ओके, एंड नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, यानी कि बेरिलियम एंड नाइट्रोजन को ना क्या करोगे, बेरिलियम के बाद कौन आना चाहिए, बोरोन, तो उन दोनों को सफल कर देना। देन कार्बन के बाद क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन, तो लेकिन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन डाल देना, तो ये सफल हो जाएगा। तो देख लेते चलो कौन सा ऑर्डर यहाँ पे सही है, ABCD, आउट ऑफ ABCD लेट अस ट्राई। सो फर्स्ट तो गलत है, क्योंकि बेरिलियम को बोरोन के बाद लिखना था, सेकंड भी गलत है, थर्ड में लिथियम बोरोन के बाद बेरिलियम करेक्ट है, कार्बन ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन, गुड, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो बोरोन एंड बेरिलियम का पॉइंट भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का भी किया गया है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए you can solve any question for the order of ionization enthalpy. Clear? So question number 8 में आ जाओ। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, चलो इतने में ही देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ना क्या पूछा है, प्रॉपर्टी के साथ मैच करना है। ये which of the following options shall have correct pair, क्या पूछा गया है, करेक्ट पेयर पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट पेयर, ठीक है। तो हम देखो Na2O जो है ना, ये सोडियम ऑक्साइड दैट इज अ मेटालिक ऑक्साइड, तो ऑब्वियसली इट विल बी बेसिक। Al2O3 एल्यूमिना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड एंड Cl2O7, पहले ना Cl2O7 कर लो, हैलोजेंस की ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन है ये, है ना, तो obviously Cl2O7 will be highly acidic and Na2 is obviously definitely basic because it is metallic oxide. Always remember, यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिख देती हूँ, मेटालिक ऑक्साइड, मैं थोड़ा सा स्लो जाने की कोशिश कर रही हूँ बट बहुत स्लो नहीं जा रही हूँ, कंसिडरिंग कि नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी डिस्कस इन टुडेज वीडियो लेक्चर, ओके। तो इसीलिए किसी को भी अगर लगे कि थोड़ा स्पीड हो रहा है, यू कैन स्लो इट डाउन इन द सेटिंग सेक्शन, सेटिंग्स में जाके जस्ट इसका जो प्लेबैक ऑप्शन रहता है ना, प्लेबैक स्पीड, उसको तुम 1 करके रखोगे, यानी कि सेम स्पीड में रहेगा, उससे कम कर देना, जैसे 0.75 0.5, तो मैं जितना स्पीड से आज बात कर रही हूँ उसके काफी स्लो डाउन मोड में तुम लोग सुन पाओगे। अगर मेरा ये क्लास फास्ट लगा तो, और स्लो लगा तो फास्ट कर ही सकते हो, 1.25 1.5 करके भी सुन सकते हो, ठीक है। सो मेटालिक ऑक्साइड जो होती है वो इन जनरल बेसिक नेचर की होती है, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक। इन जनरल मैंने इसीलिए बोला क्योंकि कुछ कुछ न्यूट्रल भी होती है एंड कुछ कुछ एम्फोटेरिक भी होती है। न्यूट्रल माने ना एसिडिक ना बेसिक, एंड कुछ होती है एम्फोटेरिक माने बेसिक आल्सो एसिडिक आल्सो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, सो डिपेंडिंग ऑन देयर यू कैन से प्रॉपर्टीज। सो Al2O3 एल्यूमिना जो है ना वो एम्फोटेरिक है,
एंड N2O जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज योर न्यूट्रल। तो इसमें से अगर ऑप्शन तुम लोग ढूंढोगे क्वेश्चन नंबर 8, द आंसर विल बी डी, द आंसर विल बी डी, द आंसर विल बी D. Okay, in this question the answer will be D. You can see here the answer will be D. 1B, 2D, 3A and 4C. Okay, so let's begin with the question number 9. Which of the following oxide is most acidic in nature? Acidic oxide कौन होता है? Non metallic. अब यहाँ पे मैं MgO is highly metallic, BaO highly metallic oxide, कैल्शियम ऑक्साइड हाईली मेटेलिक ऑक्साइड। यहाँ पे ना बेरिलियम ऑक्साइड जो है, बेरिलियम बहुत छोटा है, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड नॉर्मली एम्फोटेरिक बिहेव करता है एंड बेरिलियम ऑक्साइड ही सबसे क्या होगा, लीस्ट बेसिक से जाते धीरे धीरे एसिडिक नेचर दिखा सकता है। बाकी तीन तो हाईली बेसिक, लेकिन हमें पूछा गया है हाईली एसिडिक और मोस्ट एसिडिक, सो वी विल टेक BeO बेरिलियम ऑक्साइड। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2018 वेरी रिसेंट। अब इसमें और थोड़ा समझ सकते हो, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया है कि MgO, BaO, CO आर हाईली बेसिक, इसलिए BeO ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अगर MgO, BaO, CO ना देके कुछ अलग ऑप्शंस देके क्वेश्चन पूछते तब क्या करेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये बेरिलियम, सो उसका मैं अगर पीरियड लिखूं, यहाँ पे ध्यान देना, देखना मैं थोड़ा सा इधर ही लिख देती हूँ। बेरिलियम जो है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, उसके नीचे कैल्शियम आता है, फिर स्ट्रोंसियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। रेडियम को मैं स्टार लगा देती हूँ, ये रेडियो एक्टिव है। ये हो गया एल्कलाइन आर्च मेटल यानी कि ग्रुप नंबर 2, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, यानी कि बेरिलियम सबसे छोटा वाला है और ये सारे डाइवेलेंट होती है, डाइवेलेंट कैटायंस फॉर्म करती है, यानी कि दे इजीली फॉर्म 2+ by losing 2 electron to get the noble gas configuration. Okay, so beryllium 2+, so it is a very small charge having 2+. तो होता क्या है ना, जब भी ऐसे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे ऑक्साइड्स आर आल्सो वन काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे होगा क्या, आयनिक कंपाउंड्स में थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, जिसके बारे में मैं केमिकल बॉन्डिंग के टाइम बताऊंगी। अब बात यह है कि बेरिलियम के साइज बहुत छोटा है और चार्ज उसके हिसाब से काफी है 2+। तो जो एक हम पढ़ते हैं कि कोई आयनिक कंपाउंड में अगर थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, इसको हम बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड को कहते हैं पोलराइजेशन, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। और ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड और पोलराइजेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ देख सकते हो साइज बहुत छोटा, तो अच्छा है, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, दोनों, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा आ जाने की वजह से, ओके, ये जो बहुत ज्यादा ये आ जाने की वजह से भी हम बोल सकते हैं ये इजीली, इसमें क्या हम लोगों को ये बेसिक जो है थोड़ा सा इतना नहीं दिखेगा। और मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही बोल सकते हो, मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम जो है, बेरियम जो है, ये देख सकते हो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ये नीचे की है, यानी कि हाईली मेटेलिक है, किससे, बेरिलियम से। तो ऑब्वियसली जितना मेटेलिक होगा उतना बेसिक ऑक्साइड होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो बेरिलियम ही ऐसा है जिसकी टेंडेंसी बेसिक होने की कम होगी एंड थोड़ा एसिडिक की तरफ होगी, ठीक है। तो मेनली हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, बाकी तो ये बेरिलियम ऑक्साइड का मैंने एसिडिक नेचर के साथ साथ थोड़ा कोवेलेंसी भी होता है वो भी बता दिया, ठीक है। MgO, BaO, CaO एंड BeO के बीच में अगर कोई पूछे which is the least ionic in nature, then you will say BeO, okay। चलो, सो यहाँ पे पोलराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला पार्ट मैंने एडिशनल बताया। क्वेश्चन इसके जगह अगर हम चेंज कर दे, मोस्ट एसिडिक के जगह अगर पूछ दे क्या, मोस्ट कोवेलेंट, तब BeO आंसर ही होगा, तब इसका रीजन होगा पोलराइजेशन, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। In which of the following options the order of arrangement does not agree with variation property indicated? कौन सा नहीं हो रहा है यहाँ पे मैच, वो देखना है। सो इस पे अगर हम लोग देख लें, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजिंग फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, जैसे कि if fluorine gains 1 electron it becomes chloride, fluorine gains electron it becomes chloride। तो हमेशा ध्यान देना, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H easy से, ये स्क्रीन पे देखते रहो, डेल्टा H easy जो है basically if you go from left to right, in general I am talking about, not the exceptions, left to right, this delta H easy increases,
okay, and this delta H easy decreases what top to bottom in general. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है हेलोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली में बेसिकली। क्या एक्सेप्शन है कि होना तो चाहिए था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, होना ये चाहिए था ना, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग एन आयोडीन के बाद एस्टेटिन, दिस शुड बी द ऑर्डर, बट ऐसा होता नहीं है। स्क्रीन पे देखते रहो, ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, फ्लोरीन की जगह सबसे ज्यादा कौन होगा, क्लोरीन, and after chlorine it will be fluorine, then bromine, then iodine, then astatin, and so on. Okay, so that means there is a shift, chlorine should be before fluorine in this increasing order, यानी कि does not agree with variation of properties जो लिखा है इसमें ऑप्शन ए तो ठीक है ना, क्योंकि it is not a good match, it is not correct match, बी सी तो करेक्ट है। एंड देन लास्ट इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो है ना, उसमें नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से आगे होना चाहिए था, प्रीवियसली मैं बोल चुकी हूँ, यानी कि ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस क्वेश्चंस एक्चुअली कम फॉर नी, पर यहाँ पे ए एंड डी दो करेक्ट था, ये 2016 का है, ठीक है। सो इसमें हम कंसेप्चुअली देखें तो ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। चलो आगे। So now in the question number 11, the formation of oxide ion, oxide माने O2 minus ion है ना, O2 minus ion, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एंड एक्सोथर्मिक, पहला तो स्टेप एक्सोथर्मिक होगा और दूसरा स्टेप क्या होगा बोले हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि O गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग O माइनस, इसमें देखते हो माइनस 141 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ है। इन द सेकंड केस प्लस 780 किलोजूल पर मोल एनर्जी, प्लस का मतलब एब्जॉर्ब हुआ है। That means in the first step energy is released and exothermic, and the second step is endothermic, energy is absorbed. Why so? So ये होता इसीलिए है क्योंकि पहला न्यूट्रल एटम था ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज हाईली नॉन मेटालिक, इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करके स्टेबिलाइज हो जाता है थोड़ा बहुत, इसीलिए एनर्जी रिलीज कर देता है। बट इन द सेकंड स्टेप इफ यू सी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहा है, एनायन के पास ना, O माइनस, ठीक है, वो लोग बोलेंगे मैम O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो O2 माइनस हो जाएगा, O2 माइनस मतलब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 डाल दिया तो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंड वी नो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यस ये है। बट द पॉइंट हियर इज नियॉन होने के बाद जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन में आने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उससे फिर काफी ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रॉन को O माइनस के साथ डालने के लिए, क्योंकि O माइनस इज एनायन एंड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या जुड़ सकता है, समझ आता है। सो एनायन विल नेवर अलाउ टू कम दिस इलेक्ट्रॉन, ओके। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये वाला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन 1. Okay, next, which of the following orders of ionic radii correctly represented, तो इसमें अगर देखें रॉन्ग इसमें करेक्टली रिप्रेजेंटेड कोई नहीं है, नन, हाँ, ऐसे एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्वियसली जिसमें ऐसा होगा कि नन या फिर कोई प्रिंटिंग का, सो इसमें मैं लिख दी हूँ नन। Next 13, which of the following arrangement represents the correct order? Which of the following arrangement represent the correct order of least negative to most least negative to most negative electron gain enthalpy? लीस्ट नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लीस्ट नेगेटिव मतलब सबसे कम एनर्जी रिलीज करना, बाद में ज्यादा, यानी कि पहला तो पूछा है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, और मोस्ट नेगेटिव कब होगी, जब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, कब करेगा, जब लेने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हाईएस्ट तो इसमें मुझे दिख रहा है कार्बन कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोरीन, ऑक्सीजन में फ्लोरीन ही होगी, एंड लीस्ट होगी सबसे ज्यादा जो मेटालिक है। सो इसमें 13 में ऑप्शन हो जाएगा उस हिसाब से डी, है ना, क्योंकि कैल्शियम इज द मोस्ट मेटालिक हियर, एंड बाकी धीरे धीरे जाके फ्लोरीन इज हैलोजन एटम, एंड हैलोजन फैमिली की पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर क्लोरीन रहता ना, क्लोरीन से भी ज्यादा क्लोरीन का होता Cl का, पर यहाँ क्लोरीन है नहीं, सो इस 5 एलिमेंट्स में से क्लोरीन सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, in which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the property indicated against it? So not strictly according, यानी कि कौन सा यहाँ गलत पूछा है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ पहला तो करेक्ट है, HF से HCl HBr HI, क्योंकि FCl बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, एंड वी नो दैट जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन इजीली जो H+ है ना इजीली रिलीज होगी, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए तो करेक्ट है। नेक्स्ट H2O H2S H2SE H2P इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। सो यहाँ वो लोग लिखा है इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, नो नो नो,
डिक्रीजिंग पीके वैल्यू होना चाहिए क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये रॉन्ग है। कैसे, मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे हम देख सकते हैं कि pKa एक्चुअली है क्या, pKa माने निगेटिव लॉगरिथम, ये लॉगरिथम का लॉग बेस 10 है, ठीक है, लॉग के। अब यहाँ पे ये Ka क्या है, तो ये जो Ka है ना, Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, whenever if you see any question acidic strand related questions theoretical जो ऑर्गेनिक वगैरह में हम सॉल्व करते हैं by seeing the stability of conjugate base and all, बट नॉर्मली जब कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है वहां से भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट बोल सकते हैं, जिस एसिड का के वैल्यू ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। सो इससे हम लोग ना एक पॉइंट यहाँ पे कर लेते हैं, हम बोलेंगे अगर कोई भी एसिड का के वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा है। और के ज्यादा होने से पीके क्या होगा, कम होगा। के ज्यादा होने से पीके कम होगा बिकॉज दिस इज नेगेटिव लॉगरिथम। ये फॉर्मूला यहाँ पे बॉक्स में मैं डाल देती हूँ, इसको याद कर लेना, देख सकते हो। सो इसका मतलब इंक्रीजिंग पीके वैल्यू का मतलब डिक्रीजिंग के वैल्यू, बट ये तो इंक्रीजिंग के वैल्यू लिखना चाहिए था, दे हैव रिटन पीके इंस्टेड ऑफ के, इसीलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग among isoelectronic species। अब नाम आया isoelectronic species, ऐसा isoelectronic का आगे भी 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे मिनिमम। isoelectronic species लगभग कुछ सालों में ऐसे रिपीटेडली मैंने देखा है, हो सकता है क्वेश्चन अलग हो बट रिलेटेड टू isoelectronic species only। तो क्या है एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये isoelectronic species होता क्या है। आइसो जब भी जैसे आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोटोप्स है ना, आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब है सिमिलर, ओके। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मींस कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन, कोई भी स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मींस the species containing equal number of electrons, okay। So species containing equal number of electrons। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आगे चलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक चीज यहाँ बता दूं कि होता क्या है। तुम्हें आयनिक रेडियस के बारे में पूछा जा सकता है, किसके बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। सो आयनिक रेडियस के बारे में अगर पूछा जाता है then it is directly proportional to number of electron and inversely proportional to number of proton। इसको याद रख लेना है। For isoelectronic species we know that number of electron equal, यानी कि प्रोटॉन से मैटर करेगा, प्रोटॉन कम तो आयनिक रेडियस ज्यादा, उस हिसाब से देख लो। Amongst isoelectronic species smaller the positive charge, अगर कैटायन की चार्ज जो है +1 +2 +3 में से +1 हो मान लो, smaller is ionic radius, no। जितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा ना उतना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तब जाके स्मॉलर आयनिक रेडियस होगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन अगर स्मॉल है तो आयनिक रेडियस स्मॉल नहीं होगा, क्लियर। सो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट तो ये हो ही गया, फिर भी बाकी स्टेटमेंट एक बार मैं बता देती हूँ कि करेक्ट है कि नहीं। अमंग्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर नेगेटिव जैसे कि -1 से ज्यादा -2, -2 से भी ज्यादा -3 on an ion larger is ionic radius, yes -1 से -2 is greater in size, क्योंकि जैसे ज्यादा नेगेटिव होते जाएंगे इसका मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब है धीरे धीरे साइज ऑफ एटम और द आयन विल इंक्रीज। बी करेक्ट है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस एज move down the first group of periodic table, ये भी करेक्ट है। बी सी तो करेक्ट है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियड, ये भी करेक्ट है। सो बी सी डी करेक्ट, ए जो है वो रॉन्ग है, सो वी हैव टू टिक ए, they are asking us wrong statement। Next आ गया क्वेश्चन नंबर 16, what is the value of electron gain enthalpy of Na plus if IE1 माने initial enthalpy first of Na is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होता क्या है देखो, सोडियम मान लो एक गैसेस एटम इमेजिन किया तुमने, एंड सोडियम गैसेस एटम जिसके एटॉमिक नंबर 11 है, वी ऑल नो, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ये बन गया Na प्लस, यू कैन से गैस।
So this is endothermic process. To remove an electron from the outermost shell of sodium gaseous atom, we will require some energy, and that energy is already given, and that is known as IE1. The first electron you are removing. If you remove the another electron from Na plus, then it will be IE2. Then again one electron, then it will be IE3, the successive levels. So here it is IE1 जिसका वैल्यू दिया हुआ है और उसके पॉजिटिव वैल्यू होगा 5.1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो बहुत ज़्यादा राइट साइड में लिखने से आई होप तुम लोग नहीं देखोगे, तो मैं काम करती हूँ इसको मिटा के नीचे लिखती हूँ ताकि सबको दिखाई दे. सो आई विल राइट हियर. सो IE1 जो है that is written as 5.1 electron volt. Okay, electron volt. Now if you see the reverse, that means Na plus, okay, reactant becomes product, product becomes reactant, that is reverse. Na plus gains one electron. अभी राइट साइड को लेफ्ट इमेजिन करो, अगर Na plus उस इलेक्ट्रॉन को ले ले तो फिर Na गैस बन जाएगा. पर ध्यान देना, फॉरवर्ड जाने का जो मैंने बताया था उसमें 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायरमेंट था, प्लस था. जब बैकवर्ड करेंगे उतना ही एनर्जी वो रिलीज करेगा. यानी कि अगर कोई डेल्टा एच इजी पूछे या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईजीई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस गैस पूछे तो हम बताएंगे कितना होगा वो -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जितना एनर्जी लेके एब्जॉर्ब करके सोडियम ने सोडियम प्लस बनाया उतना ही सोडियम प्लस से सोडियम बाई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग होगा, एंड फॉर दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी -5.1. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का. 17, question number 17, which of the following oxide amphoteric, amphoteric माने which is behaving as acid as well as base. यहाँ पे SiO2 acidic है, CO2 acidic है, CaO जो है basic है, amphoteric 3 oxide है. Next, the correct order of diffusing ionic radii among the following isoelectronic. फिर से आगे क्वेश्चन. तो diffusing radii, तो इतना ध्यान देना कि देखो सारे जो कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम कंटेन 20 में से 2 चला गया 18 हो गया, पोटेशियम कंटेन 19 उसने एक दे दिया तो 18 हो गया, सल्फर कंटेन 16 2 ले लिया 18 हो गया, क्लोरीन कंटेन 17 एक ले लिया -1 चार्ज तो 18. सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है यानी कि. तो हम लोग मेनली ध्यान देंगे कि किसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके वो इतना बना है इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी प्रोटॉन्स कम होगी तो उसकी ऑब्वियसली Ne/Np रेशियो विल बी हायर एंड हेंस आयनिक रेडियस विल बी हायर. सो इसमें तुम लोग देखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना नेगेटिव हो, हायर नेगेटिव वैल्यू हो, उतना ही वो हाई इन साइज होगा, एंड जितना ज़्यादा कैटायोनिक होगा उतना ही साइज छोटा होगा. इस हिसाब से इसमें हो जाएगा 18 का सी. ओके, 18 का हो जाएगा सी. The next question, number 19, which of the following represent correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign, माने energy released for element oxygen, sulfur, fluorine, chlorine. तो highest will be fluorine, fluorine के बाद होगा fluorine, and then होगा sulfur, and then oxygen का सबसे कम. तो it will be you can say 19B. कैसे मैं बता देती हूँ एक बार फिर से. इसमें तुम लोग ऑर्डर याद रखना. This one. क्वेश्चन नंबर 19 के लिए याद रखना. हेलोजन फैमिली में अगर हम देखें एक्सेप्शनली फ्लोरीन में होता है, और बाकी सब सेम है, नॉर्मल जो ट्रेंड फॉलो करना चाहिए वही फॉलो करेगा इसके नीचे. ये हेलोजन फैमिली का लिख दिया मैंने, और एक आटा नहीं है, हाँ थोड़ा सा मेरा हाथ टेढ़ा हो गया, एक ठीक है. और इधर मैं लिख देती हूँ ये 17 ग्रुप का मैंने लिखा, इधर मैं 16 ग्रुप का लिख देती हूँ, हालांकि लेफ्ट में मुझे लिखना चाहिए, ज़्यादा नहीं है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सल्फर का ज़्यादा होता है, 2 ऑक्सीजन इज द सेकंड पीरियड, नीचे कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है. फिर भी ऑक्सीजन नहीं, फिर सेलेनियम है, फिर जाके ऑक्सीजन है, सल्फर सेलेनियम ऑक्सीजन, और इसके बाद जो भी एलिमेंट्स होना चाहिए वही है. तो यहाँ ध्यान दो, सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नीचे चला जाएगा, क्लोरीन में क्लोरीन सबसे आगे, इसलिए मैंने ये वाला टिक किया बी, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे लास्ट एंड क्लोरीन सबसे फास्ट. ये 2 बार आया है, देखो it has repeated like 5 years later again the same question being asked. 25 to 20. Among the elements calcium, magnesium, phosphorus, chlorine, the order of increasing atomic radii. So calcium, magnesium, these two are the metals, phosphorus, chlorine, these two are the non-metals. Now we have to arrange them according to atomic radii, increasing atomic radii.
सो इसमें अगर हम देखें मेटल का तो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, दे लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और इसी पीरियड के राइट मोस्ट साइड में फॉस्फोरस क्लोरीन है। क्लोरीन तो और राइट मोस्ट साइड में है, क्लोरीन तो सबसे छोटा होगा एंड कैल्शियम सबसे बड़ा होगा क्योंकि मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आता है एंड डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो उस हिसाब से बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, among the following which one has highest cation to anion size ratio? cation highest, anion छोटा होना चाहिए, so anion छोटा तो फ्लोरीन हो गया एंड सीजियम, yes सीजियम फ्लोराइड हो जाएगा। Among the element which with the following electronic configuration, which one of them may have highest ionization energy? Highest ionization energy निकालना है। highest ionization energy हो जाएगा इसमें, देखो 2p1 3p2 then 3p1, ये तो A and C तो नहीं होगा obviously, B and D दोनों का ही ionization energy high होगा, बट द पॉइंट हियर इज एक तो 4p3 है, एक 3p3 है। अब कौन छोटा होगा, कौन किसके नीचे होगा? डी ऑप्शन का जो भी एलिमेंट है उसके नीचे बी वाला एलिमेंट होगा, यानी कि ये वाला जो है नियन 3s to 3p3, इट्स साइज विल बी लिटिल लेस देन द बी ऑप्शन, सो साइज लेस तो ionization energy विल बी हाईएस्ट, तो डी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग, कैल्शियम 2 प्लस पोटेशियम, ऐसे करके ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, यू कैन सी ऑलरेडी। तो सबसे निगेटिव S2 माइनस सबसे राइट साइड होना चाहिए एंड सबसे ज्यादा कैटायनिक है कि कैल्शियम 2 प्लस, उसको सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। कैल्शियम 2 प्लस के साथ पोटेशियम प्लस देन आर्गन देन Cl माइनस देन S2 माइनस, आई थिंक दिस विल बी ए के साथ ही मैच कर रहा है, जो मैं आंसर दे रही हूँ। With which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy? Lowest ionization enthalpy क्या होगा? Lowest पूछा है, हाँ lowest. So ionization enthalpy lowest उसी का होता है, S block के elements के होते हैं, because they are highly metallic, they have very high tendency to lose electron. Easily electron देना चाहता है तो obviously energy ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है वहाँ से electron निकालने की। So इसमें तो मुझे B दिखाई दे रहा है, 1:2:2p 6 है, हाँ ये प्रिंटिंग में 3s1, ये हो गया सोडियम मेटल। Next question number 25. Which of the following ionic species has the greatest proton affinity? Greatest माने highest, proton affinity माने H plus लेने की tendency. अब H plus कौन लेना चाहेगा? जो सबसे ज़्यादा बेसिक है वही तो H plus लेना चाहेगा, प्रोटॉन लेना चाहेगा, या you can say acidic H plus लेना चाहेगा। तो F माइनस, SH माइनस, I माइनस, NH2 माइनस में से निगेटिव साइन नाइट्रोजन में है इन A ऑप्शन, B ऑप्शन फ्लोरीन में है, C ऑप्शन आयोडीन में है, D ऑप्शन सल्फर में है। फ्लोरीन आयोडीन ये सब हेलोजन है, यानी कि ग्रुप नंबर 17 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नेक्स्ट हो गया डी ऑप्शन जहां सल्फर नीचे आता है ऑक्सीजन की, और नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो लेस है वो नाइट्रोजन है, एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है लेगा, और वो एगा, 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 और वो एमोनिया बन जाएगा NH3, इजी। So next आज क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is most basic oxide? तो most basic तो यहाँ पे देख लेते हैं, मोस्ट बेसिक में ये एल्यूमिनियम है, बिस्मथ है, सेलेनियम है, एंटीमनी है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बिस्मथ, सेलेनियम तो नहीं होगा, ऑक्सीजन फैमिली का हो गया, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम थेलियम पोलोनियम, इसमें एंटीमनी से भी नीचे बिस्मथ आता है। सबसे ज़्यादा मेटालिक बिस्मथ होने के कारण मोस्ट बेसिक ऑक्साइड विल बी बिस्मथ ऑक्साइड। What is the correct relationship between pH of isomolar? Isomolar माने same molarity, where molarity is the concentration unit we all know, and molarity equals to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Next, pH1, pH2 ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, Na2O देख सकते हो, Na2O, Na2S, Na2Se and Na2T. तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक Na2O है, यानी कि pH1 should be highest because we know that जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी pH वैल्यू should be high, और इसका मतलब आंसर A ही होगा 27, the answer will be A. Next question number 28, ionic radii. Ionic radii will be inversely proportional to effective nuclear charge. So what is effective nuclear charge by the way? इसको थोड़ा सा मैं राइट हैंड साइड में लिख देती हूँ, effective nuclear charge. ओके, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है?
एक्चुअली देखो होता क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, लेट मी कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट, ऑब्वियसली फर्स्ट में होगा, ठीक है, सेकंड में भी मान लो 2-3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, तो भी है, जस्ट एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ। इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, बाकी को अभी छोड़ो, सिर्फ एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करो, या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यू कैन ऑब्जर्व, बट एट वन टाइम एक को हम देख रहे हैं। फिर इसको अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ऑब्वियसली इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर न्यूक्लियस। बट बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बाकी जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो उसको क्या करेगा, रिपल्शन देगा, समझ आ रहा है, और उसके वजह से एक आउटवर्ड फोर्स भी जनरेट होगा। एक है इनवर्ड फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस दिखा रहा है, और एक आउटवर्ड फोर्स भी है जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से हो रहा है। दोनों मिलके एक फाइनली नेट फोर्स होगी, और उसी नेट फोर्स के लिए हम लोगों ने क्या मेंशन किया है, जेड इफेक्टिव, जेड स्टार, उसी का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हिच इज इक्वल्स टू जेड। एक्चुअली जेड ही होना चाहिए था न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस मान लो जितने फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहते हैं जेड minus sigma. Here sigma denotes screening constant or shielding constant. ओके, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो पुश कर रहा है ना, वो पुश करके इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकुलर को आउटसाइड कर रहा है ताकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट ना कर ले न्यूक्लियस से, यानी कि उसको शील्ड कर रहा है, ऐसा करके इमेजिन कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। सो एक चीज ध्यान देना, अब अगर मैं हाइड्रोजन एटम स्पीसीज ले लूं जहां एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा? नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज z इफेक्टिव विल बिकम इक्वल टू z, बिकॉज वहां सिग्मा 0 होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है। तो वही टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि जहाँ एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसके अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उस पर असर डालने के लिए। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आयनिक रेडियट, क्योंकि आयनिक रेडियट कब कम होगी, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान देना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है ना, उतना ही साइज क्या होता है, कम होता है। बट यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में दो आंसर है, एक तो ए ऑप्शन में न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या तब कैसे पता चलेगी कि स्क्वायर यूज होगा कि नहीं, उसके लिए एक्चुअली एक फॉर्मूला था, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड फ्रॉम बोर्स मॉडल। जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें मैं बता दूंगी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। आर इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर बाय जेड से मैंने ये लिया है। r directly to n square, here n means orbit number कि कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एंड z हो गया एटॉमिक नंबर व्हिच डिनोट्स द न्यूक्लियर चार्ज, ओके। और z कब होगा, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा, और अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी कि कोई भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उसी z की जगह हम लिखते हैं z इफेक्टिव, ओके, न्यूक्लियर चार्ज, e न्यूक्लियर चार्ज लिख देते हैं, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। सो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि उस पे कोई स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर तो n पे है, z इफेक्टिव में नहीं है, सो इसीलिए 28 a होगा, b नहीं होगा, ध्यान देना उस पॉइंट को। 29 द आयंस ऑफ SiO2 F Na Mg2 and Al3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैसा है वो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देयर आयनिक रेडियाई शो, तो उसका आयनिक रेडियाई जो पहला पॉइंट है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 to Al3, इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज होगा, सो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 30, which of the following order is wrong, इसमें wrong पूछा है, तो पहला नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ऐसे नीचे जा रहा है, साइज ऑफ एटम बढ़ते जा रहा है, वहां पे लगा हुआ हाइड्रोजन रिलीज होना आसान है, लेकिन तुम्हें रॉन्ग पूछा है, सो रॉन्ग कौन सा होगा, पहला तो करेक्ट हो गया तो हम टिक नहीं कर सकते, फॉर रॉन्ग सेकंड देखते हैं। चलो फर्स्ट आईपी, आईपी माने आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन एनर्जी एंड आयनेशन पोटेंशियल की ऑर्डर सेम होता है, कैसे, बिकॉज आयनेशन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज required to remove the electron from the outermost cell of the gaseous isolated atom. एक्चुअली वही है आयनेशन एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। अब वो एनर्जी आएगा कहाँ से, कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स से तुम्हें देना पड़ेगा, सो वो एक्सटर्नल वन फैक्टर यू कैन इमेजिन, तुमने वोल्टेज सप्लाई किया, सो वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना सप्लाई करने से उतना आयनेशन एनर्जी जनरेट होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल ऑफ द गैसेस आइसोलेटेड एटम से निकल जाए, दैट इज योर आईपी, ठीक है। सो इसीलिए आयनेशन एनर्जी ऑर्डर आईपी ऑर्डर सेम।
सो यहाँ पे लिथियम बेरिलियम को ना बोरोन से आगे लिखना चाहिए था हमें, तो ये रॉन्ग में हो गया ठीक। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल, ये भी फर्स्ट आईपी है। अमंग फॉलोइंग एलिमेंट्स बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसमें बेरिलियम तो बोरोन से आगे होना चाहिए, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के आगे नाइट्रोजन होना चाहिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट विल बी योर ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो ऑब्वियसली दिस इज क्लोरीन। ये बहुत ही कॉमनली एक्स क्वेश्चन है, चलो स्टार लगा देते हैं। वेरी इजी एंड वेरी कॉमनली एक्स, क्योंकि नॉर्मली वी हैव द टेंडेंसी टू make a mistake thinking it to be fluorine, but fluorine is most electronegative element in the whole periodic table, most electronegative, but most electron affinity fluorine से भी ज़्यादा किसका? fluorine का। the first मतलब Cl का, the first ionization potential इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, और बेरिलियम बोरोन, अब देखो बेरिलियम बोरोन का वैल्यूज तुम्हें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बेरिलियम बोरोन में से कौन फुलफिल्ड है? बेरिलियम, तो नॉर्मली बेरिलियम के बाद बोरोन होना चाहिए, बट एक्सेप्शनली वी नो बेरिलियम का ज्यादा होता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम है ना, रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है, नहीं पहला वैल्यू बड़ा, लेटर वैल्यू छोटा, तो वो तो डी ऑप्शन ही उसको दिखा सकता है। 33 डी। इसके बाद चलो आगे 34, which of the following is correct? करेक्ट पूछा है। साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आई, जो आई माइनस है ग्रेटर आई देन आई प्लस, वेरी इजी, क्योंकि जितना नेगेटिव होते जाएंगे उतना साइज बढ़ते जाएंगे, जितना उससे पेरेंट एटम से पॉजिटिव होते जाएंगे साइज घटते जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द लार्जेस्ट इन साइज? लार्जेस्ट इन साइज तो यहाँ Cl माइनस सी, ये तो S2 माइनस हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की ही क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, which of the following has smallest? Smallest तो एल्यूमिनियम 3 प्लस हो जाएगा। among the following oxide the one which is most basic? most basic में यहाँ पे हम देखेंगे कि N2O5 तो एसिडिक है, ZnO एम्फोटेरिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक है, MgO is highly basic because magnesium belongs to alkaline arch metal. which of the following is has largest size? next question, largest related है, तो इसमें largest size Na plus, Na minus का हो जाएगा। next, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, सिलिकॉन 4 प्लस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इसका साइज देखोगे सबसे छोटा सिलिकॉन 4 प्लस होना चाहिए, सो सिलिकॉन 4 प्लस, Al3 प्लस, Mg2 प्लस। इसमें आंसर दिख रहा है मुझे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, सिलिकॉन 4 प्लस, सीरियली डिक्रीज हो रहा है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट 40, the periodic table from left to right in a period, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम का क्या होगा? देखो एटॉमिक वॉल्यूम जो है ना डिपेंड्स ऑन रेडियस ओनली, है ना, जिसका रेडियस ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, बिकॉज नॉर्मली लाइक एटम जो होते हैं ना, वी कंसीडर एटम टू बी स्फेरिकल इन शेप, एंड स्फेरिकल का वॉल्यूम तो पता ही है सबको, 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर, तो आर बढ़ेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो एज ए होल वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो इसमें ध्यान देना, डिक्रीज होगा, बट देन इंक्रीजेस वाला ये डी ऑप्शन होगा, सिर्फ डिक्रीजेस नहीं होगा। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? डिक्रीज होना चाहिए अक्रॉस लाइक अ पीरियड, हम लोग तो पढ़े हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, हाँ ऐसा होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जब जाओगे ना डिक्रीज ही होता है, डिक्रीज 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 डिक्रीज। जो लास्ट एलिमेंट है नोबल गैस है, उसमें ये डिक्रीज ऑर्डर जो फॉलो होता है ना, वो फॉलो ही नहीं होता, because जो noble gases है they do not follow this metallic bonding concept, covalent bonding concept, ionic bonding concept, they have the concept of van der Waals force of attraction और van der Waals force of repulsion। उस हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, एक टॉपिक हम जब देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस को अगर कंसीडर किया जाए, atomic radius, different type of atomic radius are there, so if you like classify atomic radius, then you can say metallic radius, you can say covalent radius and van der Waals radius। ठीक है, इन तीनों में से अगर रेडियस की ऑर्डर हमें पूछे तो van der Waals रेडियस हाईएस्ट, देन मेटालिक एंड देन कोवलेंट, इसको ऑर्डर को याद रखना। ठीक है, सो इसीलिए लेफ्ट टू राइट अक्रॉस जब हम जाते हैं, इनिशियली मेटालिक मिलती है, फिर कोवलेंट मिलती है, तो डिक्रीज होते जाता है, बट सडनली नोबल गैसेस जो होती हैं वो van der Waals फोर्स दिखाने की वजह से सबसे हाई साइज हो जाती है, इसीलिए डिक्रीज ही होता है, लास्ट इंक्रीज हो जाता है। सो van der Waals जो भी है VDW रेडियस इज स्पेसिफिकली हम लोग नोबल गैसेस में कंसीडर करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी मेटालिक बॉन्ड,
कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो उसमें तो वैन डेर वाल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज abnormally high difference between second and third electron? ना जी सेकंड थर्ड के बीच में abnormally high difference होने का मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलना चाहिए, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है ये वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 का, अगर मैं 3s2 निकाल दूं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये 1s2 2s2 2p6 वाले नियॉन बन जाएगा, तो नोबल गैस बन गया, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल, तो 41 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, one of the characteristic properties of non-metal is that they are characteristic non-metal, okay, they are reducing as in, no, they are oxidizing as in, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू non-metal has tendency to gain electron, okay, सो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाता नॉन मेटल, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ये भी नहीं। फॉर्म केटायन बाय इलेक्ट्रॉन गेन, केटायन कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा, एनायन बनाएगा, वो भी गलत है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, हाँ, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, वो है डी। Which one of the following has minimum value of cation anion ratio? तो मिनिमम वैल्यू माने केटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, तो इसमें तभी मिनिमम वैल्यू ऑफ केटायन एनायन रेशियो होगा। एनायन फ्लोरीन एंड क्लोरीन में से क्लोरीन बड़ा होगा, तो CaF2 को तो काट दो, वो ऑप्शन होगा नहीं। सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम में से मैं दिखा देती हूँ, सोडियम के नीचे पोटेशियम होता है, सोडियम के राइट साइड में मैग्नीशियम। सो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, साइज छोटा हो जाता है, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम। अब इसमें केटायन लगा दो, जो चार्ज लगाना है, पर Na+ Mg2+ में से Na+ बड़ा है, और Na+ K+ में से कौन बड़ा है, K+, बिकॉज डाउन द ग्रुप, तो सबसे छोटा इन तीनों में से हुआ Mg, तो MgCl। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, which of the following sets a strongest tendency to form anion? So anion form तो nitrogen, oxygen, fluorine, obviously they belongs to second period, smallest size and having highest electronegativity. Next, elements of which of the following group will form anions most readily तो बनाएगा halogens, ठीक है। Next हो गया 46, in a periodic table with the increase in atomic number metallic character of an element. So question number 46 में पूछा है metallic character of an element decreases in period, क्योंकि मेटलिक तो धीरे धीरे डिक्रीज होकर नॉन मेटलिक साइड में जाएगा ना, अक्रॉस अ पीरियड माने लेफ्ट टू राइट, एंड इंक्रीजेस इन अ ग्रुप, यस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज? स्मॉलेस्ट साइज तो मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम, लिथियम, सो इसमें स्मॉलेस्ट हो जाएगा बेरिलियम, ठीक है। ये एक बार बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 47 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ध्यान से देखना, बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम, ओके, एंड बेरिलियम के आगे होता है लिथियम, और यहाँ होता है सोडियम, ठीक है। अब बात ये है, सोडियम लिथियम से बड़ा है एंड सोडियम मैग्नीशियम से भी बड़ा है, और लिथियम मैग्नीशियम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, क्लियर, अप्रोक्सीमेटली सेम है, उसको हम कैसे देखेंगे, ये लिथियम बेरिलियम सेकंड पीरियड के हैं, सोडियम मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के हैं, और लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल है, इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशंस। Diagonally they are having some physical and chemical properties similar because of their same you can say nature of polarization, so diagonal relationship कहते हैं। because of diagonal relationship क्या होता है, लिथियम मैग्नीशियम की जो साइजेस है, लिथियम प्लस है, मैग्नीशियम 2+ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, सो और लिथियम से राइट में बेरिलियम है, बेरिलियम छोटा होता है लिथियम से, तो अगर बेरिलियम छोटा, लिथियम मैग्नीशियम दोनों से ही बेरिलियम छोटा होता है, एंड लिथियम मैग्नीशियम दोनों से ही सोडियम बड़ा होता है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, बेरिलियम, हो गया। सो ये जो मटेरियल्स है मैंने टोटल 47 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर दिया है तुम लोग के साथ। सो दिस 47 क्वेश्चन इस पब्लिकेशन से मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं, तो मुझे लगा एक दो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कम है जैसा लगा, कुछ एक दो क्वेश्चन जो मैं कराती हूँ इसमें मुझे मिला नहीं जैसा लगा, या फिर कोई साल का कोई क्वेश्चन अगर और आया है 2021 या 2022 एक दो उन लोगों ने स्किप किया जैसा लगा, तो उसके लिए मैंने और एक पब्लिकेशन का कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे मुझे लगता है कि चैप्टर का बचा हुआ कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है उसको कवर हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसको मैं जो यहाँ लेके रखी हूँ उसका भी डिस्कशन करा ही देती हूँ। एक सेकंड रुकना जरा, स्क्रीन में थोड़ा सा लास्ट पेज पहुँच गया। यहाँ से तो ये क्वेश्चन उस पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस में 47 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें था नहीं, लेकिन ये रिसेंट क्वेश्चन है नीट 2020 का, तो इसलिए मैं कराना चाहती हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन था उसमें, बट यही क्वेश्चन नहीं था। सो नीट 2020 का ये क्वेश्चन एक बार देखना, मैच द फॉलोइंग है। CO जो है ना, कार्बन मोनोक्साइड जो है वो न्यूट्रल होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, याद रखना। बेरियम ऑक्साइड इज ऑब्वियसली हाईली बेसिक, क्योंकि ये जो है मेटालिक ऑक्साइड है। देन Al2O3 ऑलरेडी हमने देखा था एम्फोटेरिक है, Cl2O7 तो हेलोजन की ऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली एसिडिक हो गया। तो अब उस हिसाब से ऑप्शन अगर मिलाओगे कुछ ऑप्शन विल बी करेक्ट ए, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर हम देखेंगे 1 और 2, सो एन एलिमेंट है सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन है। सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी 940 then 2080 3090 4140 7030 7870 के सडनली 16000 19000। सो अगर देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक ठीक था, सो हाईएस्ट जंप जो हुआ है वो 6 के बाद 7th इलेक्ट्रॉन में हाईएस्ट जंप हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका हम निकाल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, क्योंकि 7th इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन निकालना हो रहा है, इसीलिए तो 6 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में 16000 पहुंच गया आयनेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल। ओके, तो हमेशा ये ध्यान देना कि सबसे पूरे डाटा में से हाईएस्ट कौन सा कंसेक्यूटिव जो डाटा में हाईएस्ट गैप है उसी में आयनेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू को ब्रेक करना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब तक उतना तक जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वही उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 का मतलब ये तो ऑक्सीजन फैमिली हो गई, ये ऑक्सीजन फैमिली हो गई हमारी आंसर, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ठीक करेंगे 16, ग्रुप नंबर 16। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द सेकंड आयनिशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, सेकंड आयनिशन पोटेंशियल लेकिन पूछे पहला नहीं दूसरा, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने का आयनिशन पोटेंशियल इज इनवेरिएबली हायर देन फर्स्ट आयनिशन पोटेंशियल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो पहला इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी m से तुम निकाल लो पहला इलेक्ट्रॉन तब m प्लस बना है ना, यानी कि पहला न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, दैट इज हियर। एंड सेकंड स्टेप तुम कहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लो? कैटायन, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये छोटा हो चुका है, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर बढ़ चुका है, ठीक है। सो इसीलिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालना कैटायन से, क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर डिफिकल्ट। तो ये पहला स्टेप का जो I1 होगा ये IP1 होगा और ये I2, तो सक्सेसिव लेवल्स में हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। तो इसमें आयनाइजेशन इसमें लिख सकते हो द साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर देन इट्स एटम, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 150 में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, O से O2 माइनस गैस एक्सोथर्मिक ऐसे से लिखा हुआ है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट में C होगा। N गैस से N माइनस गैस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन ऑलरेडी इज हाफ फिल्ड, सो नाइट्रोजन जो है ये हाफ फिल स्टेबिलिटी दिखाता है, हाफ फिल स्टेबिलिटी। सो हाफ फिल होने के कारण ऑलरेडी इसकी स्टेबिलिटी वेरी वेरी हाई, सो इसीलिए वो नहीं चाहता कि एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करके N माइनस बन जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई endothermic process है because energy is required for this process। नाइट्रोजन का मैं इलेक्ट्रिकल फिगर दिखा देती हूँ, चलो। सो नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p 6, यानी कि 1s2 2s2 फुलफिल है, बट 2p जो है ना उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 3, यानी कि हाफ फिल, क्योंकि हर एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्स टू मैक्स कितना इलेक्ट्रॉन फिल अप हो सकता है 2। Which of the following represent the correct order of EA? EA माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन की ज्यादा होगी, क्लोरीन से ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ये नहीं है। क्लोरीन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेरिलियम नाइट्रोजन, ये वाला हो जाएगा डी।
क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल होने के कारण इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसलिए उसकी थोड़ा कम हो जाएगी कार्बन से। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन में से नाइट्रोजन एक बार पीछे से आ गया। और बाकी क्लोरीन में मैंने ऑलरेडी बताया था क्लोरीन का एक्सेप्शन के लिए हाई हो जाता है बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, उसमें थोड़ा जगह होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एम कर ले, बट क्लोरीन की ज्यादा होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द हायर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बिकॉज उसकी साइज जो है छोटा है बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। नेक्स्ट हो गया 152, व्हिच ऑफ फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? which of the following will have the most negative electron gain enthalpy? most negative electron gain enthalpy, electron gain enthalpy negative का मतलब एनर्जी रिलीज, most का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कब करेगा? जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन लेना चाहता होगा कोई, इलेक्ट्रॉन ले ले, वो स्टेबल होके एनर्जी पूरा रिलीज कर दे, कुछ द लीस्ट नेगेटिव। तो एक तो मोस्ट एंड लीस्ट, तो मोस्ट कौन होगा? ऑब्वियसली क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन को ढूंढो। लीस्ट कौन होगा इन चारों में? फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर में फास्फोरस होगा, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा 152 डी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस। सो क्वेश्चन नंबर 153 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 153, हियर यू कैन सी दैट ऑक्सीजन से O- होना वो डेल्टा H1 है और वो एक्सोथर्मिक है। सेकंड प्रोसेस एंडो है, ऐसे एक्सो है, एंडो है, देन अगेन एक्सो है, एंडो, क्या करना? तो उस हिसाब से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब द पॉइंट हियर इज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या लिखा है? इनकरेक्ट रिगार्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन। कौन सा इनकरेक्ट है? डेल्टा H5 लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2 एंड डेल्टा H1 बोला है, वो करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है, डेल्टा H1 लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2, सब सारे करेक्ट है। डेल्टा H2 इज मोर पॉजिटिव देन डेल्टा H1, डेल्टा H2 मोर पॉजिटिव देन डेल्टा H1, सारे करेक्ट है, इसमें नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज में अगर हम देखें, ये भी बहुत बार कर चुके हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसमें देख लेते हैं। क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्लोरीन के बाद क्लोरीन होना चाहिए, ये नहीं होगा, इसलिए क्लोरीन क्लोरीन भी नहीं होगा, क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन फास्फोरस नाइट्रोजन, या क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस, तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन सिर्फ लास्ट में होगा ये। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक चीज ध्यान देना, व्हेनेवर यू लर्न अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके तीनों स्केल्स के बारे में देख लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हिच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन हो गया lattice energy, hydration energy, electronegativity, these are the topics on the periodic property. अब electronegativity is also a periodic property which is one of the most important in its application point of view, you can say इसके सारे applications point of view से बहुत questions बनने के chances होते हैं। electronegativity, इसके एक स्केल जो है पॉलिंग एंड पॉलिंग स्केल given by पॉलिंग, एक तो मोलिकन स्केल हो गया, मिलिकन स्केल भी हो सकता है, सेकंड में मिलिकन लिखा हुआ रहता है, मिलिकन मिलिकन। और इसके बाद एक हो गया तुम्हारा ऑलरेगन रॉसो स्केल। क्लास में मैंने तीनों के वैल्यूज लिखा दिए थे, एक बार तुम लोग उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 160। The electronegativity of the following element increases in the order. So electronegativity of the following element increases in the order में आ जाता है electronegativity सबसे ज्यादा तो इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। इसमें देखो कार्बन के आगे नाइट्रोजन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन और नाइट्रोजन में फास्फोरस, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होंगे, है ना। और कार्बन नाइट्रोजन में जो कौन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फास्फोरस में कौन कम होगा? फास्फोरस। और यानी कि फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन, देन ध्यान देना कार्बन, और इधर सिलिकॉन जो है सबसे क्या होगा? लीस्ट होगा, ठीक है। सिलिकॉन लिस्ट नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन लिस्ट नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी। नेक्स्ट आ गया 161, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन मैक्सिमम तो COF2 में होगा। ऐसा क्यों? इसमें क्या करना है ना तुम्हें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट करना है, सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रिडॉक्स के क्वेश्चन जब मैं करूंगी वहां पे सिखा दूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग एक्स मेथड कैसे हम लोग आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। COF2 का होगा, एक्चुअली COCl2 COF2 दोनों में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, but obviously fluorine में से fluorine is more electronegative attached to electronegative as well,
ये बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हो गया इसमें करेक्ट एक्सप्रेशन, मैंने जैसे बोला ना डायरेक्ट याद कर लेना मेरे कॉपी से। सो ऑलरेड एंड रॉक्सो स्केल, ऑलरेड एंड रॉक्सो स्केल के हिसाब से इसमें हो जाएगा ये तो नहीं होगा, रॉन्ग है, 0.359 आर स्क्वायर बाई जेड इफेक्टिव नहीं है, एक्चुअली जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.359, जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर का 0.74। देखो ऑलरेडी एंड रॉक्सो स्केल का फॉर्मूला तो फिर क्वेश्चन से ही तुम लोग का याद हो जाना चाहिए। 162 क्लियर। नेक्स्ट 162 सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिफरेंट स्केल। अच्छा तो इसमें पॉलिंग स्केल को काई p से डिनोट किया है और मोलिकन स्केल को काई m से डिनोट किया है, और इन दोनों का रिलेशन मैं बता देती हूँ एक बार। पॉलिंग स्केल का वैल्यू जो भी होगा काई m बाई 2.8 होगा। ओके सो उस हिसाब से देखा जाए यानी कि काई m का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी पिक कर देना है ना। सो काई m का याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो मॉड, मॉड मैंने ओनली मैग्नीट्यूड लेना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। अगर तुम्हें निकालना है मोलिकन स्केल पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू काई m, ओके, तो तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काय से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, काय इटा ये सारी तो तुम लोग ग्रीक सिंबल जानते होंगे, आयनेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर ऐड करके if we divide it by 2 then we get the electronegativity आंसर मिल जाता है मोलिकन स्केल में, और अगर उसको फिर 2.8 से डिवाइड कर दें हम तो वो वैल्यू किसमें बदल जाएगा मोलिकन से पॉलिंग स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 164 सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड पोलैरिटी। तो बॉन्ड पोलैरिटी तो पता ही होगा, बॉन्ड पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस होना, यानी कि बॉन्ड पोलैरिटी तभी ज़्यादा होगी when electronegativity difference, en माने electronegativity difference की निकली, जब electronegativity difference ज़्यादा होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा तभी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगा। उस हिसाब से चेक कर लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना तो आता ही है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई और लेस यानी कि इसकी बॉन्ड पोलैरिटी कम होते जा रहा है, सो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। चल एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन का होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, एंड फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। ओके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 1s2 2s2 2s5, उस हिसाब से अगर ऑप्शंस देखोगे ना सी हो जाएगा। इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली फ्लोरीन बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगी इसकी ऑब्वियसली, एंड बिलोंग्स टू सेम पीरियड एज दैट ऑफ लिथियम, बिकॉज़ लिथियम भी सेकंड पीरियड का ही हिस्सा है, सेकंड पीरियड स्टार्ट्स विद लिथियम एज विद नीलम। Next question 165 के बाद 166 है, calculate the bond length CX bond if CC bond length, CC माने homo atomic bond, XX माने halogen with halogen bond, so homo atomic दोनों bond जो है प्लस कैसे करेंगे, so bond length for क्या निकालना CX, तो CX का bond length के लिए क्या करोगे, जो तुम्हारी covalent radius है CC वाला एंड covalent radius है किसका XX वाला, उन दोनों को प्लस करके 0.09 इंटू, इसमें मॉड ले लेंगे एक्चुअली 0.09 इंटू, इसमें हम करेंगे काई ए माइनस काई बी करेंगे, ए बी में ये क्या है कार्बन एंड हेलोजन, तो काई माइनस काई बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्चुअली क्या है कार्बन एंड हेलोजन, सो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 कर लेना, यहाँ 2 माइनस 3 यानी कि -1 आ जाएगा, -1 का मॉड लोगे तो 1, 0.09 इंटू 1 0.09 ही रहेगा, और उसको प्लस कर देना है कार्बन कार्बन का और इसका जो है रेडियस से, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ का आधा रेडियस होता है, यानी कि 1.54 एंगस्ट्रॉम को तुम्हें आधा लिखना है और 1.2 एंगस्ट्रॉम को भी आधा लिखना है, तभी जाके तुम्हारा आंसर इसमें सही होगा। ओके तो ये फॉर्मूला मैंने दे दिया है, लेकिन ध्यान देना R फॉर होमो एटॉमिक इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ D डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये 1.54 के आधा कर लेना, 1.2 के आधा कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलो 167 लाइटेस्ट
element of which group has highest electron affinity. So highest electron affinity in its group, अपने ग्रुप में lightest एलिमेंट मतलब सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि सेकंड पीरियड एलिमेंट होनी चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है। तो इसमें मेनली हम लोग देखें ग्रुप 16, ग्रुप 15, 14 ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हिसाब से देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज़्यादा थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की हो जाती है। सो लाइटेस्ट एलिमेंट तो ये ग्रुप 1 ही हो जाएगा बिकॉज उसमें कोई ऐसा नहीं होगा। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड होती है लाइटेस्ट एलिमेंट की ही होगी और उसके धीरे धीरे नीचे जाएंगे मल्टीप्लाई करता बढ़ेगा तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और घट जाएगी। सो हाइड्रेशन एनर्जी में आ जाते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, the hydration energy of Mg2 plus ion lesser than N, obviously L। क्यों? अब हाइड्रेशन एनर्जी में आ जाते हैं। Addition energy is directly proportional to charge, inversely proportional to radius. So कुछ बुक में रेडियस मिलेगा, कुछ बुक में वॉल्यूम मिलेगा, कुछ बुक में साइज मिलेगा। साइज का मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एंड वॉल्यूम रिलेट्स टू रेडियस बिकॉज हम जानते हैं कि कोई आयन या एटम उसको स्फेरिकली इमेजिन करना है और स्फेरिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा मतलब साइज ज़्यादा, सिंपल। सो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली टू चार्ज बाय रेडियस। और यहाँ पे रेडियस इसमें अगर हम देखें एल्यूमिनियम 3 प्लस सोडियम प्लस बेरियम 2 प्लस नन ऑफ दिस, बेरियम तो बहुत बड़ा है, सोडियम एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम छोटा, प्लस सबसे चार्ज भी अगर देखें एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो ये नेक्स्ट 169 अमंग द फॉलोइंग व्हिच हैज मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होने के लिए चार्ज ज़्यादा होना चाहिए बट सबका चार्ज सेम है। देखो -1 +1 -1 +1 तो सभी का मोनोवैलेंसी ही है। तो यहाँ देखेंगे रेडियस, तो रेडियस वाइज अगर देखोगे इसका सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट which of the following is arranged in order of increasing radius, increasing radius के लिए एक और सॉल्यूशन में पूछा है। अब एक चीज ध्यान देना, एक तो होता है रेडियस ऑर्डर। रेडियस ऑर्डर अगर हम देखें हमसे सोडियम बड़ा है ना, नॉर्मल रेडियस जो पूछ रहे हैं हम लोग किस स्टेट में जब ये सब रहता है या सॉलिड स्टेट में, तब लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम। बट जैसे ही ये सारे कैटायंस जो है ठीक है नॉर्मली गैसेस स्टेट में जब रहेगा, मैंने जी लिख दिया है गैसेस स्टेट। लेकिन अब अगर मैं हाइड्रोजन रेडियस पूछूं एच, इसका मतलब हो गया लिथियम प्लस एक्वस। एक्वस फॉर्मेट में अगर देखोगे, एक्वस फॉर्मेट में अगर देखोगे ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, जो सबसे छोटा था उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके सबसे बड़ा बना देगा। देख रहे हो ये पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर था, ये अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये पूरा लिख लेना ऑर्डर, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो होगा। तो उसके लिए मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बता दूँ। होता क्या है एक्चुअली, मान लो ये यहाँ पे हम लोगों ने H2 ले लिया और मोस्ट कॉमन पोलर सॉल्वेंट, और उसमें कोई भी जैसे कि LiCl या कोई भी ऐसे आयनिक कंपाउंड डाल दो, जैसे ही LiCl जाएगा पानी में जाके बन जाएगा Li+Cl। बट ये गैसीय स्टेट में ब्रेक डाउन होता है जब ये आयनिक क्रिस्टल जाती है, लेकिन उसको तो वाटर मॉलिक्यूल्स हर तरफ से क्या करेगा सराउंड। अब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2O, ये ऑक्सीजन में डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव होके ये एक डाइपोल फॉर्म में रहता है। इसको हम सिंबॉलिकली माइनस फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये लिथियम को हर तरफ से क्या करेगा ना, कुछ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा। ये स्फेरिकल है, ठीक है 2D में ड्रॉ कर रही हूँ बट एक्चुअली चीजें 3D है। बट वाटर का ये लिथियम प्लस के साइड में कौन आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव साइड आएगा, नेगेटिव 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 साइड, समझ आ रहा है? ऐसा डाइपोल उसको सराउंड कर लेगा। वैसे कैटायंस अनायंस ये जो आयंस होती है दे आर फ्री टू मूव, दे आर मोबाइल इन नेचर, इधर उधर मोशन करते रहते हैं रैंडम मोशन, बट अनस्टेबल होते हैं, हाई एनर्जी होती है। बट जैसे ही हर तरफ से वाटर उसको सराउंड कर लेगा ना, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो उसकी स्टेबिलिटी जैसे क्लोरीन माइनस के पास प्लस साइड वाला वाटर मॉलिक्यूल्स के प्लस साइड वाला डाइपोल आएंगे, और इसके वजह से हाइड्रेशन के वजह से जितना अच्छा हाइड्रेशन होगा ना उतना ही स्टेबिलिटी, यानी कि एक ही जगह रहेगा, अब ज़्यादा इधर उधर मोबिलिटी नहीं दिखाएगी, कि थर्ड मोबिलिटी थर्ड जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो हाइड्रेशन के वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी इस कैटायन एनायन का, आयनिक मोबिलिटी घटेगी और इसकी हाइड्रेटेड रेडियस में क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेडियस जिसका छोटा होता है वो उसका हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा होता है, उसको ध्यान देना ये वाले को, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डर क्या होगा, लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा, देन सोडियम पोटेशियम ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, which of the following compound has negative enthalpy of solution, solution बनाने का मतलब है वही पानी में घुल जाना, मिक्स हो जाना। नेगेटिव एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज करना। कौन नेगेटिव एनर्जी मतलब दिखाएगा, ये एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज कौन करेगा, केबीआर, केआई, केएफ, केसीएल। तो कैटायन तो सबका सेम
प्लस चार्ज जो है सबका सेम है, तो नेगेटिव चेक करो, नेगेटिव एक का F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, इसमें से सबसे इजीली सॉल्यूशन बनाएगा F माइनस, क्योंकि चार्ज सबका सेम है बट साइज इसका क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा का हाइड्रेशन क्या होगा, सबसे अच्छा होगा, तो सबसे अच्छा हाइड्रेशन होने से सॉल्यूशन इजीली बन के एंथैल्पी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सो नेगेटिव एंथैल्पी विल बी मोर। सो some questions on lattice energy, हाइड्रेशन एनर्जी के बाद lattice energy, इसमें 2-3 टॉपिक ऐसा था जो मैं प्रीवियस 47 क्वेश्चंस दिखाया उसमें मुझे लगा मिसिंग है, तो एक दो ऐसे उठा दिया ताकि इसका भी प्रैक्टिस हो जाए, क्या पता पूछ ले, है ना, क्या पूछेंगे हमें तो नहीं पता, एग्जाम देने की वक्त ही पता चलता है। चलो, लेकिन एक आइडिया हम लगा सकते हैं, बाय द प्रीवियस ईयर 10 to 15 इयर्स उसी के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यू वगैरह चेंज कर ले, लेकिन समझ among sodium halides and NaF, NaCl, NaBr, NaN, NaF has the highest melting point, NaF has the highest melting point because of, so ये NaF has highest melting point because of जो है क्या है, highest melting point, easily melt नहीं कर रहा है, temperature high पे ही melt कर रहा है, so ये melting point of any crystal depends on lattice energy, ठीक है, जितना lattice energy हाई होगा ना melting point हाई होगा, so यहाँ पे maximum lattice energy, क्लियर। अब बोलोगे मैम lattice energy क्या है, देखो जैसे तुम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते हो उसमें क्रिस्टल लेटिस के बारे में पढ़ते हो, तो आयनिक क्रिस्टल्स, मेटेलिक क्रिस्टल्स, वो सारे जो होते हैं एक पार्टिकुलर क्रिस्टल लेटिस यानी कि एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा तो उसको हम सॉलिड कैसा बोलेंगे, एमोर्फस, ओके, डेफिनेट सॉलिड पैटर्न हो दैट इज क्रिस्टलाइन। अब वो पर्टिकुलर कोई भी क्रिस्टल जैसे कि NaCl को हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, सो अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो हाईली पैक्ड होने चाहिए ताकि वो इजीली मेल्ट ना करे, मेल्ट होने का मतलब कैटायन एनायन खुल जाना, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस घट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, सो वो टेम्परेचर देते देते जाने से होगा, अगर इजी टेम्परेचर में ही मेल्ट डाउन हो गया है ना, मेल्टिंग पॉइंट लो, तो लेटिस एनर्जी का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड, सुन ले जाना लेटिस एनर्जी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल लेटिस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कैटायन, जैसे 1 मोल NaCl को तोड़ के अगर मुझे Na+Cl- में कन्वर्ट कर देना है, जितनी एनर्जी मुझे देनी होगी उसको हम बोलेंगे लेटिस एनर्जी। अब उल्टा भी बोल सकते हो कि Na प्लस एंड Cl- 1 मोल कंबाइन करें तो जो 1 मोल NaCl क्रिस्टल बनेगा उस टाइम में जो एनर्जी रिलीज करेगा वो लेटिस एनर्जी, क्योंकि देखो जब NaCl तोड़ोगे क्या मिलेगा, Na+Cl-, और जब Na+Cl- कंबाइन होगा क्या मिलेगा, NaCl, है ना, वाइसन वर्सा हो गया, तो NaCl तोड़ोगे Na+Cl- बनने के लिए एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, और Na+Cl- कंबाइन हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, तब NaCl हो गया, तब एनर्जी रिलीज होगी। ऑलवेज रिमेंबर बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक whereas bond breaking is endothermic in nature, क्लियर। सो वो चीज याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली उसका लो लेटिस एनर्जी, हम लोग का पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा देती हूँ। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, लेटिस एनर्जी की भी वो हाइड्रेशन एनर्जी जैसा सेम है, लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, चार्ज बाय लेटिस, वही हाइड्रेशन एनर्जी के जैसे सिंपल है। थोड़ा सा इसको डिटेल में चाहिए तो लेटिस एनर्जी इज इक्वल टू गामा ZC बाई RC प्लस RA लिख सकते हो, यहाँ पे ZC माने चार्ज ऑफ कैटायन, ZA माने चार्ज ऑफ एनायन, RC माने रेडियस ऑफ कैटायन, RA माने रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। सो रेडियस नीचे है और कैटायन एंड एनायन की चार्जेस Q1 into Q2 कर दिया चार्जेस, और ये गामा क्या है, सो गामा के लिए एक एग्जांपल से सिखाने की कोशिश करती हूँ, चलो, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट इज एन आयनिक क्रिस्टल, इसको तोड़ोगे ना तो 2 एल्यूमिनियम प्लस कैटायन मिलेगा, मतलब एल्यूमिनियम 3 प्लस, और 3 SO4 Al2 SO4 3 सल्फेट मिलेगा आयन, तो आयन कितना मिला टोटल 2 + 3, टोटल आयन मिला 5, सो यहाँ पे गामा का वैल्यू क्या लिखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सिंपल, सो उस हिसाब से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, और इसको मॉड दे देते हैं क्योंकि ओनली द मैग्नीट्यूड वी हैव टू deal with, and this is you can say the direct formula, इससे भी और डिटेल्ड फार्मूला है कपोटिंस्की फार्मूला एंड ऑल, बट इसमें कुछ कुछ वैल्यूज आ जाते हैं डेफिनेट, बट उसको जरूरत है नहीं, तो इसलिए यहाँ से काम चल जाता है। Among the following, लेकिन ये ध्यान देना ये डायरेक्ट मेथड है टू फाइंड आउट लेटिस एनर्जी, देयर इज इनडायरेक्ट मेथड आल्सो टू फाइंड लेटिस एनर्जी, जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे, ये 175 में जो लिखा हुआ है बॉर्न-हैमर साइकिल, तो दिस इज द इनडायरेक्ट वे, बॉर्न-हैमर साइकिल इज द इनडायरेक्ट वे टू डिटरमाइन लेटिस एनर्जी ऑफ एनी क्रिस्टल सिस्टम।
सो उससे पहले लेकिन 173 में आ जाओ जरा, among the following oxide which has maximum lattice energy, lattice energy maximum कब होगा, सबका ऑक्साइड है ना, तो कैटायन देख लो, कैटायन कैटायन सभी डाइवेलेंट है, चार्ज सेम है, रेडियस देख लो, सबसे छोटा कौन है, उसी की मैक्सिमम लेटिस एनर्जी होगी, सबसे छोटा तो मैग्नीशियम ही लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि बाकी तो मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे स्ट्रॉन्शियम, देन नीचे बेरियम, ठीक है। नेक्स्ट 174, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन इजीली बनना नहीं चाहता है, क्योंकि पॉजिटिव एंथैल्पी मतलब एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन, पॉजिटिव एंथैल्पी एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन, तो इजीली सॉल्यूशन नहीं बनने का मतलब है इजीली वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, यानी कि लेटिस एनर्जी हाई, तो लेटिस एनर्जी हाई जब होगा तभी तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा क्रिस्टल, कैटायन एनायन में ब्रेक नहीं होगा, है ना, कैटायन एनायन जो होता है प्लस माइनस में ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होने से तो वाटर उसको आके सॉल्वेट या हाइड्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सॉल्यूशन, तो इसमें लिथियम 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 है, तो सबसे लिथियम आयोडाइड जो है इसमें एनायन का साइज सबसे बड़ा होने के कारण यू कैन सी पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लेटिस एनर्जी सबसे इसमें ज़्यादा हो जाना चाहिए इसमें, ठीक है, तो एल आई लेटिस एनर्जी है तो ये हो जाएगा, क्योंकि जहाँ लेटिस एनर्जी है इजीली ब्रेक डाउन होकर वो सॉल्यूशन में जाएगा। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा इसमें 175 बॉन्ड हेबर साइकिल कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट, तो इसमें हम देखेंगे बॉन्ड हेबर साइकिल में, बॉन्ड हैमर साइकिल में हम देखेंगे लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल हाँ निकाल सकते हैं, साथ में ना फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आ जाता है, आयनेशन एंथैल्पी भी आ जाता है, सब्लिमेशन एनर्जी वगैरह आ जाता है, बट हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं आता। तो बॉन्ड हैमर साइकिल में एक एग्जांपल अभी तुम लोग को दिखाऊंगी, उस हिसाब से ए एंड बी दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, डी, ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, डी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बॉन्ड हैमर साइकिल का एक एग्जांपल बता ही देते हैं। जैसे कि इफ यू वांट टू सी बॉन्ड हैमर साइकिल NaCl का, तो सिंपल, सो Na सॉलिड स्टेट में रहता है इन नेचर स्टैंडर्ड स्टेट, हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट से हम अगर लिखने की कोशिश करें, देन Cl2 का आधा लेना होगा, NaCl चाहिए तो गैस स्टेट में रहने की, और NaCl ये हो गया सॉल्ट, ठीक है। सो इसके लिए डेल्टा H क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन लिखेंगे, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड स्टेट एंड 1 मोल फॉर्म किया है ना, 1 मोल NaCl इज फॉर्म फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंटल फॉर्म्स, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ठीक है, वो निकालना है हमें। तो तुम्हें पता है कि सोडियम तो सॉलिड स्टेट में रहता है, वैसे क्लोरीन गैस स्टेट में रहता है, लेकिन हमें हाफ लेना है क्योंकि वी रिक्वायर 1 क्लोरीन एटम, ठीक है। अब आगे आगे देखते जाना होगा क्या, सॉलिड से इसको गैसियस बना लेना, क्योंकि मुझे अल्टीमेट NaCl कहाँ से आएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस से, तो मेरा टारगेट है Na प्लस बनाना। अब Na प्लस बनाने के लिए ऐसे ही सॉलिड से तो बन नहीं जाएगा, बिकॉज वी नो एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द गैसेस आइसोलेटेड सिस्टम, तो पहले गैसेस आइसोलेटेड सिस्टम बनाने के लिए ये जो सॉलिड है ना उसको गैसेस करो, और गैसेस करने के लिए जो एंथैल्पी यूज होगा डेल्टा H सब्लिमेशन, SUB सब्लिमेशन, जो कि पॉजिटिव होता है एंडोथर्म, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, ताकि सोडियम सॉलिड को तुम सोडियम गैस कर दो। इसके बाद सोडियम गैस से क्या करोगे ना, इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, जिसको हम डेल्टा H आयनाइजेशन बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये सोडियम प्लस गैस बन जाएगा, सोडियम गैस हो गया। लेकिन सोडियम प्लस को Cl माइनस चाहिए ना, आप Cl माइनस बनाओ कैसे, ये जो Cl2 है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, डेल्टा HBDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसके आगे हाफ लगा देंगे क्योंकि हाफ इज द कोफिशिएंट है। वो करने के बाद तुम्हें एक Cl गैसेस एटम मिलेगा, और उसमें तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन गेन करा देना है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेल्टा इज इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तो क्या बन गया, Cl माइनस गैसेस। नाउ दिस Na प्लस एंड Cl माइनस गैसेस कैन कंबाइन टुगेदर टू गिव यू NaCl, क्योंकि सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। और ये जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा है ना, इसमें कलर चेंज करके मैं दिखा देती हूँ, चलो सारे, तो हियर ये जो NaCl लिखा है ना, ये जो लास्ट स्टेप है, इसमें जो यूज होगा एनर्जी दैट इज लेटिस एनर्जी, और इसमें एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि दोनों कंबाइन होकर NaCl बनाया है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है मैं सर्कल कर देती हूँ, so sublimation, ionization, lattice, electron gain enthalpy and bond decision energy, these are the 5 parameters which are being used in bond Haber cycle, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो नहीं हो, ठीक है, सो वो चीज ध्यान देना।
तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे हम लोग अभी कैसे क्या करना है इसमें। तो मेनली यहाँ पे हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन यूज होता है, और ये लॉ तुम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। सो हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, पूरा नाम में नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब प्रोसेस में जितना एंथैल्पीज यूज हुआ है पांचों, ये पांचों अगर तुम प्लस कर देते हो, जैसे डेल्टा एच सब्लिमेशन है, डेल्टा एच आयनेशन है, देन लेटिस एनर्जी का वैल्यू, देन डेल्टा एच ईजी का वैल्यू, एंड डेल्टा एच बीडीई का वैल्यू, हाफ, ये सब कर दोगे तो टोटल जो स्टेप है वो क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन कर रही हो। तो किसका फॉर्मेशन, NaCl, इसके एलिमेंटल स्टेप से डेल्टा एच फॉर्मेशन मिलेगा, किसका, NaCl सॉलिड का। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग। तो इसका मतलब है तुम क्या कर सकते हो आसानी से, ये लेटिस एनर्जी निकाल सकते हो इफ यू नो द ऑल अदर 4 वैल्यूज, है ना, 5 वैल्यूज डेल्टा एच फॉर्मेशन के साथ और बाकी 4 वैल्यू। या फिर कहते हैं कभी कभी लेटिस एनर्जी वैल्यूज आल्सो गिवन, सब्लिमेशन दे कैन आस्क यू। सो ये हो गया एक तरीका कैसे हम इनडायरेक्टली लेटिस एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह निकाल सकते हैं यूजिंग बॉर्न हैवर्स साइकिल, व्हिच एक्चुअली यूज द हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। क्लियर, चलो। और एक क्वेश्चन आ गया है, आई गेस इसी में हम लोग का आज का वीडियो लेक्चर खत्म होगा। 176, कंसिडर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इसमें ध्यान देना NaCl सॉलिड से Na प्लस गैसियस Na Cl माइनस गैसियस हो जाना, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाना। डेल्टा H1 जो है वो एंडोथर्मिक है, एंडो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा H2 जो है ना, वाटर दे के ये एक्वस एक्वस बनाना, या डेल्टा H3, ये दोनों निगेटिव निगेटिव लिखा है, यानी कि एक्सो, ठीक है। अब चलो क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, डेल्टा H1 इज नेगेटिव, नो 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 दैट इज पॉजिटिव, तो पहला तो रॉन्ग है। दूसरा डेल्टा H2 इज नेगेटिव, यस, while डेल्टा H1 इज पॉजिटिव, यस, ये हो गया। बाकी करने की इसमें सी दिया हुआ डेल्टा H4 इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस N1 डेल्टा H2 प्लस N2 डेल्टा H3, ये करने से बोले हैं N1 लेस देन N2, नहीं ऐसा कुछ है नहीं, बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 177, CaO विल एग्जिस्ट ड्यू टू। अब देखो CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि ये आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेटिस एनर्जी शुड बी व्हाट, मोर, है ना। लेस कैसे होगा, मोर लेटिस एनर्जी होना चाहिए, जितना हायर लेटिस एनर्जी वो इतना टाइटली पैक्ड होगा, ओके। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद यहाँ आती नहीं है, सो ऑप्शन सी। ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड इट। सो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो जो एकदम पहला क्वेश्चन था ना, इसी के बारे में पूछा था, देख रहे हो, Rg रोएंटिजीनियम जो मैंने लिखा है, रोएंटिजीनियम और रोएंटिजीनियम, उसके बारे में 111 जो है, ये Cn जो है वो 112 है, फिर ये 113, 114, 115, 116, 117, ये अनोक्टन 118, ठीक है। और ये सीरियम टू ल्यूटेटियम, दैट इज योर सीरियम आता है इसके बाद, ये लेंथेनाम से यहाँ से शुरू होगा, लेंथेनाम इज 57, सीरियम इज 58, 58 से लेके ये 70, यू कैन से 1 तक। और नीचे थोरियम किसके बाद आता है, एक्टिनियम के बाद, इसलिए इसको एक्टिनाइट बोलते हैं, है ना। सो थोरियम हो गया 90, 90 से लेकर लॉरेंसियम Li, दैट इज योर 103, 103 के बाद फिर यहाँ से शुरू होगा रदरफोर्डियम, ठीक है, 104 ऐसे स्टार्ट होते जाएगा, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 12 ऐसे करते करते, ठीक है। ये हो गया लैंथेनाइट व्हिच इज 4f series and then actinide 5s series, these two series comes under F1। ये क्वेश्चन Rg का 111 का पूछा गया था 2020 में। इस ब्लॉक का ये दो ग्रुप हो गए, ये हो गया डी ब्लॉक का 10, पी ब्लॉक का 6, और इसमें 14 14 करके टोटल 28 एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं जो है तुम लोग बता देना इसका तुम लोग को हेल्प हुआ है कि नहीं बाय दिस वीडियो।
बाय दिस डिस्कशन एक्चुअली। एंड अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं एक और वीडियो बना के इसके जो भी मेन टॉपिक्स हैं उसका मैं एक रिविजन करा सकती हूँ, लाइक रैपिड रिविजन। एकदम तो लंबा चौड़ा क्लास करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट बोर्ड एंड यू डोंट हैव इवन टाइम आल्सो, बिकॉज 17 जुलाई इज अ पब्लिक डे। ठीक है। और तभी तुम लोग चाहोगे, या फिर दूसरा वीडियो इसके टाइम में भी मैं हो सकता है इसका निमोनिक्स, क्योंकि आज का मुझे लग रहा है वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा कर दिया मैंने खींच के, मतलब जितना क्वेश्चन था करते करते टाइम चला ही गया अल्टीमेटली। क्योंकि जस्ट मैं टिक नहीं करा सकती, टिक कराना वो तो कोई भी करा सकता है आंसर की। आजकल तो बुक के पीछे सॉल्यूशन भी गिवन रहता है आंसर की भी, बट देन ऑल्सो ऐसे डायरेक्ट टीचर के साथ ऐसे हम लोग जो डिस्कस करते हैं दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल वे आई गेस, आई थिंक। ओके, तो इसलिए मैंने करा दिया है। तो चलो इसको हम यहीं पे एंड अप कर देते हैं। इफ यू वांट द निमोनिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इफ यू वांट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, देन प्लीज लेट मी नो, देन आई विल हैव अनदर वीडियो। बट ऑब्वियसली ये पहला मैं अपलोड करने के बाद दूसरा जो करूंगी दैट विल बी योर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर आई विल बी डूइंग योर नेक्स्ट जो तुम लोग बोलोगे। ठीक है, हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग, या फिर हो सकता है सॉल्यूशन सीपी या केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, चलो, ताकि फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों साथ में लेते चले, फिर ऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक आगे करो पीछे करो मैटर नहीं करता, बस फिजिकल इनऑर्गेनिक से पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसका प्रैक्टिस और ज़्यादा जरूरी है। चलो, सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, कि तुम लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, जम की तैयारी करो। ठीक है।